Yes, so let us not waste much more of the time and let us begin the lecture. Today's lecture, which is continuation of the laser chapter. Yes, are you seeing the PPT, everyone? Last time we have seen three quantum processes. If you do remember, spontaneous emission, stimulated emission, and absorption. And we have seen which process should be maximized to produce laser is stimulated emission. Okay, because in stimulated emission we get coherent photons. Okay, so if we want laser, then this emission process should be more. Now today we will see more further of the laser chapter, requirement of laser. That if you want to create a laser system, then what are the basic things you require? So requirement of laser, basic requirement of laser is the population inversion. Now what do you mean by population inversion? If you want stimulated emission should be more, then more number of atoms should be in the higher energy level, and less number of atoms should be in the lower energy level. This process, this condition is called as population inversion. Okay, making n2 greater than n1 is population inversion. Population means number of atoms in a given energy state. Now normal situation in equilibrium condition, what is the thing? This n1 is generally large and n2 is very small. Okay, population of E1 is very large and E2 is very small, because normally all the atoms try to be in the least possible energy state. But if we want the stimulated emission to be more, then what should be more? The number of atoms in the higher energy state should be more than the lower energy state. And how it is achieved? It is achieved by the method of pumping. Pumping means you have to pump the energy, you have to give the energy to the atoms in the lower energy state. The atoms will absorb that energy and they will jump to the higher energy state. So this middle thing is the saturation condition, when both the atoms are equal, n2 is equal to n1, and we want one step ahead, that we want n2 should be more than n1. So this is population inversion. Got it everyone? So inversion का मतलब उल्टा. You are inverting the process, that lower energy state is highly populated and higher energy state is least populated. You are inverting this situation. You are making it reverse. So it is called population inversion. It is also called as reverse equilibrium state. समझ में आया सबको पॉपुलेशन इन्वर्जन? पॉपुलेशन इन्वर्जन मतलब सिंपल लैंग्वेज में हायर एनर्जी स्टेट को ज़्यादा, हायर एनर्जी स्टेट में ज़्यादा एटम्स होने चाहिए, लोअर एनर्जी स्टेट में कम होने चाहिए, जो कि नॉर्मल स्टेट के उल्टा है. दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन. ओके, सो इफ द क्वेश्चन कम्स व्हाट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड ऑल, सो यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन दिस. ओके, पॉपुलेशन क्या होता है, नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, और हमको क्या चाहिए. तो ये दो डायग्राम भी आप बना सकते हो, ये पहली और तीसरी. पहली इज नॉर्मल या इक्विलिब्रियम स्टेट, तीसरी इज पॉपुलेशन इन्वर्जन. ओके, नाउ नेक्स्ट. अब सेकंड रिक्वायरमेंट ऑफ लेज़र, पॉपुलेशन इन्वर्जन कराने के लिए अब जनरली क्या होता है, हायर एनर्जी स्टेट इज हाईली अनस्टेबल, सो एटम कैन नॉट स्टे देयर फॉर लॉन्ग टाइम. एटम वहाँ पे 10⁻⁸ से -9 सेकंड तक ही रुक सकता है. तो ऐसे सिचुएशन में पॉपुलेशन इन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल. ओके, सो व्हाट इज डन, इफ़ वी इंट्रोड्यूस एन इंटरमीडिएट लेवल, जो हायर एनर्जी स्टेट से थोड़ा नीचे है पर लोअर एनर्जी स्टेट से ऊपर है, इसको कहते हैं मेटा स्टेबल स्टेट. So second requirement of laser is for creating population inversion. If we introduce intermediate level between higher and lower energy state, then this energy state is, इसका एनर्जी कम है तो कैन हैव मोर टाइम फॉर एटम्स टू स्टे. सो वहाँ पे एटम 10⁻³ से -6 सेकेंड तक रुक सकते हैं. सो पॉपुलेशन इन्वर्जन कराने का टाइम वहाँ पे आसानी से मिल सकता है. ओके, जो कि पहले 10⁻⁸ से -9 सेकेंड मिलता था, जो कि बहुत छोटा टाइम था.
है ना। -9 सेकेंड मतलब नैनो सेकेंड। इतने कम टाइम में पॉपुलेशन इन्वर्जन कराओ और फिर स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए उसके ऊपर फोटॉन्स मारो, ये सब टाइम नहीं पुरता। तो इसलिए उसका टाइम बढ़ाना था, तो टाइम बढ़ाने के लिए एनर्जी कम करनी पड़ी। पता है सबको हेजनबर्ग्स प्रिंसिपल, एनर्जी ज़्यादा तो टाइम कम, एनर्जी कम तो टाइम ज़्यादा। सो व्हाट वी डिड इज वी इंट्रोड्यूस इंटरमीडिएट एनर्जी लेवल्स, जिनका एनर्जी लेवल हायर एनर्जी लेवल के मुकाबले थोड़ा सा कम है, पर एनर्जी कम होने की वजह से उनका टाइम ज़्यादा है। सो नाउ एटम आर स्टेइंग देयर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन लाइक 10⁻³ to -6 सेकेंड, which is some microsecond, and this time is operable to introduce the stimulated emission. इतने टाइम में हम उसके ऊपर फोटोन बम्बार्ड करा सकते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट करा सकते हैं, जिससे कि लेज़र मिलेगा। ओके, सो दिस डायग्राम यू आर सपोज टू ड्रॉ कि दो एनर्जी लेवल के बीच में एक एक्स्ट्रा का एनर्जी लेवल, इसको कहते हैं इंटरमिटेंट या इंटरमीडिएट या मेटा स्टेबल। ओके, मेटा मतलब इसकी स्टेबिलिटी इन दोनों के बीच में है, इसके मुकाबले ज़्यादा स्टेबल, ठीक है, तो इसके मुकाबले ज़्यादा टाइम, ठीक है। सो दिस इज द mostly the layer where the collection of atoms is possible for large time, and we can have population inversion between this and this, and then here we can get laser डायरेक्टली। इन दोनों के बीच में पॉपुलेशन इन्वर्जन ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, क्योंकि हायर एनर्जी स्टेट इज हाईली अनस्टेबल, तो जल्दी से जल्दी एटम नीचे आ जाते, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं बनेगा तो स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं होगा। तो इसलिए ये बीच की लेवल डाली जहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन थोड़ा सा ज़्यादा देर के लिए बना रहेगा। गॉट इट एवरीवन? सो दिस इज सेकंड कंसेप्ट, ठीक है। इसके ऊपर शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन आ सकते हो, दैट व्हाट आर द कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन या मेटास्टेबल स्टेट, तो ये आपको लिखते आना चाहिए। समझ में आया? That if we have only two energy state, ground state and excited state, then excited state is highly unstable, so atom will not stay there for longer time, so atom will jump down immediately within 10⁻⁻8 to -9 second. This is very small time, so within this time we cannot have the population inversion for longer, and we cannot create the stimulated emission, ठीक है। but if we introduce some intermediate level, that is the level between higher and lower energy state, which is called metastable state, then its stability is more as compared to higher energy state, so atoms will stay there for 10⁻³ to -6 seconds, which is sufficiently large to create population inversion, and here we can also operate stimulated emission. Got it everyone? समझ में आया सबको मेटास्टेबल स्टेट का कंसेप्ट? Yes, respond. I want the responses from each one of you. Okay. And now how it is achieved? So population inversion is achieved by a method of pumping. So next we are going to see next slide. So if you want to create a laser, so how the laser is created? So there is a active medium, okay, like solid, liquid, gas, contained in an enclosure or a container which is evacuated, not having any other thing than your medium. Like your laser is a gas, then this container will contain only that gas. Like CO2 laser, it will contain only CO2 gas, okay, no water droplets, no air particle, nothing else. If it's a solid, then this active medium is completely the solid material. If it's a liquid, then this container will contain the liquid only, okay. Then this is pumping. Pumping means supplying energy, okay. You need to pump up the atoms ना, stimulated absorption वाला process करना है पहले. So ये pumping कैसे होता है? With the help of some sort of energy, like maybe electrical pumping, जिसमें electric discharge pass किया जाएगा गैस के थ्रू, या thermal pumping when it is heated and energy is supplied, or optical pumping when light is thrown upon, so photons are bombarded, so photon energy will be absorbed. So spontaneous stimulated absorption करने के लिए जो process चाहिए जिसमें energy हम देते हैं ना, that is pumping. So this pumping will give energy to this active medium. Now अब लेज़र में दो चीज़ें होती है एक्स्ट्रा की, जिसको कहा जाता है एंड मिरर्स। अब ये कंसेप्ट ध्यान से सुनो, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। एंड मिरर का क्या काम होता है? तो उसमें से जो एक एंड मिरर होता है वो कम्प्लीटली रिफ्लेक्टिंग होता है टूवर्ड्स इनसाइड,
एंड अनादर एंड मिरर इज पार्शियली रिफ्लेक्टिंग, जो आधा रिफ्लेक्ट करेगा और आधा पास करेगा। अब एक्चुअली आधा आधा नहीं होता, कुछ 98% रिफ्लेक्ट अंदर की तरफ और 2% बाहर, लेज़र लाइट बाहर देता है। सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस मिरर इज, जो भी फोटॉन्स एमिट होने वाले हैं दैट फोटॉन्स आर केप्ट इनटू द सिस्टम अगेन एंड अगेन टू रीयूटिलाइज देम। ओके, खुद ही सिस्टम के बनाए हुए फोटोन सिस्टम में ही वापस यूज़ करने के लिए ये एंड मिरर्स यूज़ किए जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड सेल्फ सस्टेन्ड सिस्टम, द सिस्टम विच रन्स ऑन इट सेल्फ, जस्ट लाइक अ कंसेप्ट ऑफ एटम और न्यूक्लियर बॉम्ब। न्यूक्लियर बॉम्ब पता है सबको, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, एक फ्यूजन होता है तो 3 न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं, वो 3 न्यूट्रॉन 3 फ्यूजन कराते हैं, फिजन कराते हैं। सो वो 3 फ्यूजन फिर से 3 न्यूट्रॉन बाहर फेंकेंगे तो वो 9 फ्यूजन कराएंगे। तो इट्स अ क्यूमुलेटिव चेन रिएक्शन, पता है ना सबको। So same thing will happen here, that because of this active medium and pumping, this absorption and stimulated emission will begin. So stimulated emission will start creating photons. Now these photons are utilized in the system with the help of these end mirrors. एक फोटोन यहाँ से यहाँ निकला, एंड मिरर ने उसको रिफ्लेक्ट करके वापस सिस्टम में डाला, तो वो फोटोन स्ट्राइक करेगा दूसरे एक्साइटेड एटम को और उसको स्टिमुलेटेड एमिशन कराएगा। तो क्या होगा, 2 फोटॉन निकलेंगे, 2 फोटॉन इधर जाएंगे, यहाँ पे स्ट्राइक कराएंगे, दो में से सपोज करो एक रिफ्लेक्ट हो गया, एक बाहर निकल गया लेजर बन के, तो जो रिफ्लेक्ट हुआ वो फिर से एक और स्टिमुलेटेड एमिशन कराएंगे, 2 और फोटॉन निकलेंगे। सो इस तरह से फोटॉन मल्टीप्लिकेशन विल स्टार्ट। Okay, so the end mirrors concept is for photon multiplication and reutilization of photon in the same medium itself to make them more and more and more. Got it everyone? तो एक एंड मिरर होता है completely reflecting inside and second end mirror is partially reflecting, partially transmitting. Now partially in the sense 97 या 98% रिफ्लेक्ट करता है अंदर और 2% वगैरह ट्रांसमिट करता है। ओके, सो दिस इज द डायग्राम एंड दीज आर द प्रोसेस। ओके, अब कभी कभार आ सकता है राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ लेजर एमिशन, ओके, या व्हाट आर द प्रोसेस टू प्रोड्यूस लेजर। सो आई विल एक्सप्लेन दिस स्टेप्स वन बाय वन। तो ये देखो, ये फोटोन दिख रहे हैं सबको, ये 4 फोटोन की वेव्स निकली है। ओके, वी नो फोटोन इज अ लाइट पार्टिकल, लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल एंड वेव। तो सपोज करो ये 4 फोटोन है, मतलब उनकी 4 वेव्स है। दीज वेव्स आर स्ट्राइकिंग दिस मिरर। Now what will happen? It is a perfectly reflecting mirror, so it will reflect all the 4 photon backwards. तो चारों के चारों टर्न हो गए सिस्टम में। तो ये 4 फोटोन फिर से 4 एक्साइटेड एटम को स्ट्राइक करेंगे, तो 4 स्टिमुलेटेड एमिशन कराएंगे, तो 4 की जगह 8 बन जाएंगे फोटोन। फिर वो इधर आएंगे, अब इधर देखो यहाँ स्ट्राइक कर रहे हैं, तो उसमें से आधे रिफ्लेक्ट हो रहे और आधे बाहर निकलेंगे लेज़र से। ओके, सो इट्स द कंसेप्ट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द कंप्लीट एनर्जी विद इन द सिस्टम, ताकि हमको बार बार स्टिमुलेटेड एमिशन कराने के लिए एनर्जी ना देनी पड़े। वरना देने वाली एनर्जी ज़्यादा रहेंगी और वापस मिलने वाली एनर्जी अगर कम रहेंगी तो वो सिस्टम इफ़िशिएंट नहीं कही जाती। If you want the system should be efficient, then the supply energy and the obtained energy should have a very high difference. Obtained energy should be more and supply energy should be less. तो हम चाहते हैं कि पंपिंग हम दें, पर इतना ज़्यादा नहीं दें। पंपिंग सिर्फ शुरुआत में प्रोसेस शुरू करने के लिए दें, बाद में प्रोसेस अपने आप ही फोटोन को मल्टीप्लाई करे और ज़्यादा से ज़्यादा फोटोन प्रोड्यूस करे, तो उसके लिए रखे जाते हैं एंड मिरर्स। हैव यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ एंड मिरर्स एवरीवन? प्लीज रिस्पॉन्ड। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एंड मिरर, व्हाई दे आर यूज्ड, so what are the keywords in the answer? Come on, what are the keywords in the answer of writing end mirror concept? How are the two mirrors? One mirror is completely reflecting and one mirror is partially transmitting, partially reflecting. Okay, okay, and what are the other keywords? How it is worked, कैसे काम करता है सिस्टम, why they are used? And mirrors are basically used to reutilize the photons in the same system again and again. Okay, so that the system should run on itself, the system should be self-sustained and photon should get more and more multiplied or amplified inside the active medium and some sort of photon will come out as laser. Okay, now what are the steps? The steps are, फर्स्ट इज एक्साइटेशन या जिसको पंपिंग कहेंगे, सेकंड स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब एकदम से स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं होगा, कुछ ना कुछ एटम अपने आप नीचे आएंगे,
एक्साइटेड स्टेट वाले एटम अपने आप ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे, उनको हम रोक नहीं सकते, दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस. So what will happen? That spontaneously emitted atom will throw some photons out. Now these photon can trigger the stimulated emission. अब यही फोटोन रास्ते में आने वाले एक्साइटेड एटम को स्ट्राइक करेंगे और फिर उनका ज़बरदस्ती स्टिमुलेटेड एमिशन कराएंगे. अब लेज़र वाला स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस शुरू हो गया. अब क्या होगा? विद द हेल्प ऑफ एंड मिरर्स दिस फोटोन विल गेट मल्टीप्लाइड, एम्पलीफाइड, एंड देन इट विल क्रिएट अ काइंड ऑफ ऑसिलेशन. ऑसिलेशन मतलब ये जो वेव्स है वो इधर से इधर जा रही है, इधर से इधर जा रही है, इधर से इधर जा रही है, इधर से इधर जा रही है. सो देयर विल बी अ टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द वेव. सो इट विल क्रिएट लाइक अ रेजोनेंस. रेजोनेंस कैविटी ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ा है ना सब लोगों ने, जहाँ पे वाटर लेवल के ऊपर जो एयर होती है उसमें लाइट साउंड रेजोनेंस किया जाता है विच प्रोड्यूसेस मैक्सिमम साउंड इफेक्ट. ट्यूनिंग फॉर्क वाला एक्सपेरिमेंट याद है क्या? उसमें क्या हो रहा है? साउंड वेव इज वाइब्रेटिंग अबाउ द वाटर कॉलम, ओके, इन द एयर कॉलम, एंड दैट टू एंड फ्रो वेव विल interfere together and it will produce the maximum amplitude, that is anti node and node condition. So वो maximum amplitude होता है आपका resonance. Okay, so same will happen. It's a kind of oscillator. The waves keep on oscillating between the two end mirrors. Okay, and hence the creation of what I can say is the resonance will be there in this active medium and hence maximum amplitude will occur. सो लाइट एम्पलीफिकेशन यहाँ पे होगा, इसलिए लेज़र का नाम है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. ओके, सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ गेटिंग अ लेज़र एंड दिस इज योर लेज़र. फ्रॉम पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर लेज़र विल कम आउट. समझ में आया सबको? अब हमको दो तरीके के लेज़र पढ़ने हैं सिस्टम में. एक पढ़ना है HENE लेज़र विच इज़ हीलियम नियॉन गैस लेज़र, वेरी सिंपल टू स्टडी. एंड नेक्स्ट वन इज़ रूबी लेज़र, मे बी सॉलिड स्टेट लेज़र. ओके, अब रूबी लेज़र शायद से कंसेप्ट में है या नहीं है, नहीं पढ़ना है, सिर्फ HENE लेज़र ही पढ़ना है. ठीक है, सो HENE लेज़र इज़ देयर इन द सिलेबस, सो लेट अस स्टडी इट. रूबी लेज़र पहले हुआ करता था, अभी शायद से नहीं है. ठीक है, पर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बहुत ही आसान है. जैसे हीलियम नियॉन लेज़र इज़ अ गैस लेज़र, रूबी लेज़र इज़ अ सॉलिड स्टेट लेज़र. सो lasers are classified according to the material, okay, which they are producing. Like if it is produced with the help of gas, then it's a gaseous laser. If it is produced with the help of some solid material like ruby crystal, ruby is a family of gems. Gems पता है, precious stones. So ruby is a kind of gem. So वो हीरे जैसा होता है, तो वहाँ से लेज़र निकाला जाता है. सो दैट इज़ सॉलिड स्टेट लेज़र. हीलियम और नियॉन गैसेस होते हैं तो वो होता है गैस लेज़र. CO2 गैस होती है तो वो होता है गैस लेज़र. तीसरा लेज़र हो सकता है लिक्विड डाई लेज़र्स. ओके, तो वो लिक्विड लेज़र्स में आता है. सो डिपेंडिंग अपॉन देयर मटेरियल द लेज़र्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 categories like solid state laser, liquid laser, gas laser. Out of 3 generally gas lasers are considered as hot lasers. ठीक है, ज़्यादातर गैस लेज़र हॉट लेज़र होते, ज़्यादा एनर्जी आउटपुट देते हैं. ओके, नाउ वी आर कंसिडरिंग दिस हीलियम नियॉन गैस लेज़र. अब डिपेंड करता है आपका मटेरियल कौन सा है और उस मटेरियल के ऊपर फिर डिपेंड करता है कि आपका पंपिंग मैकेनिज्म क्या यूज़ कर रहे हो. जैसे अब मटेरियल गैसेस है, सो पंपिंग मैकेनिज्म जनरली इलेक्ट्रिकल पंपिंग यूज़ किया जाता है. पंपिंग क्या होता है पता है सबको? पंपिंग इज द फर्स्ट प्रोसेस, दैट इज एब्सॉर्प्शन. Pumping is a kind of energy given to the atom so that they will absorb the energy and go to the excited state. पता है ना सबको? सो मटेरियल कौन सा है वो डिसाइड करेगा पंपिंग क्या करोगे. सो मटेरियल अगर गैस है तो पंपिंग ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल होता है. मटेरियल अगर सॉलिड है जैसा कि रूबी लेज़र, तो पंपिंग लाइट पंपिंग होता है जिसको ऑप्टिकल पंपिंग कहते हैं. मतलब वो सॉलिड रॉड के ऊपर लाइट मारा जाता है सभी डायरेक्शन से. मटेरियल सपोज करो केमिकल है जैसे लिक्विड लेज़र, तो फिर पंपिंग जनरली थर्मल पंपिंग मतलब हीट वाला पंपिंग यूज़ किया जाता है. द केमिकल इज़ हीटेड, okay, with the help of some source of heat. Okay, so pumping mechanism is also material dependent. So helium neon is a gas laser, so pumping used is electrical pumping. So construction में आपको ये diagram draw करनी है. So क्या होता है construction is the material, क्या क्या है. So there is a highly evacuated gas tube which is having very narrow diameter. It is filled with helium and neon gases in the ratio 10:1. सो हीलियम जो है वो छोटे छोटे रहते हैं तो वो 10
और नियॉन थोड़े बड़े रहते हैं तो वो 1 इस तरह से, मतलब 10 मिलीग्राम टू 1 मिलीग्राम या 10 हीलियम एटम के साथ एक नियॉन एटम, इस तरह से रेशियो लिया जाता है हीलियम इज टू नियॉन। जनरली हीलियम ज़्यादा लिए जाते हैं बिकॉज दे आर स्मॉल इन साइज। ओके, पर एक्चुअल जो लेज़र देने वाले हैं वो है नियॉन। सो हीलियम्स आर जस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स, हीलियम ओनली सपोर्ट द प्रोसेस। ओके, सिर्फ नियॉन लेज़र भी हो सकते हैं पर हीलियम नियॉन लेज़र का इफिशियंसी बढ़ जाता है, इसलिए हीलियम मिक्स किया जाता है। ओके, अब इलेक्ट्रिकल पंपिंग यूज़ किया जाता है, तो यहाँ से इस गैस ट्यूब के अंदर डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड्स लगे हैं विच आर कनेक्टेड टू द बैटरी, so a high electric discharge will be sent through this. Okay, then the two end mirrors as always, one is completely reflecting and one is partially reflecting, तो इस साइड से लेज़र बाहर निकलने वाला है। सो ये है सिंपल आपका कंस्ट्रक्शन। समझ में आया सबको कंस्ट्रक्शन? लिखते आएगा एग्जाम में। यस, अब ये नैरो डायमीटर क्यों रखा जाता है इसका, ट्यूब का, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, वाई द ट्यूब इज टेकन ऑफ वेरी नैरो डायमीटर, सो दैट आई विल आंसर नाउ। ये देखो, अब ये है वर्किंग। वर्किंग इज नथिंग बट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एनर्जी लेवल डायग्राम। ओके, एनर्जी बैंड डायग्राम को एक्सप्लेन करना मतलब वर्किंग बताना। तो जैसे कि मैंने कहा, दिस इज नियॉन्स एनर्जी लेवल्स एंड दीज आर एक्चुअली लेजर प्रोड्यूसिंग, these are supporting actors. So क्या हो रहा है, when you pass the electric discharge through the mixture of helium and neon gases, both the gas will get excited by the absorption process. तो helium भी excite होगा from E1 dash to E2 and E3 dash, और neon भी excite होगा from E1 to E2 and E3. But helium are small in size and large in number, so they keep on vibrating due to excited state and hence they will collide with the neon and they will pass on their energy to the neon. So जो neon directly excite नहीं हो पाए वो भी helium की वजह से अभी excite हो जाएंगे. So in this way neon atoms will be doubly excited. Okay, neon will be doubly excited, there will be double excitation of neon atoms. Okay, सो दोनों तरीके से नियॉन को एक्साइट किया जाएगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा नियॉन एटम्स अभी एक्साइटेड स्टेट में बैठ गए। अब यहाँ पे क्या है, मोर देन वन मेटास्टेबल स्टेट है। सो यहाँ पे एक ये मेटास्टेबल है, एक ये मेटास्टेबल है और एक तीसरी मेटास्टेबल है नीचे। सो देयर आर 3 मेटास्टेबल स्टेट। ओके, सो इट इज़ मोस्टली कॉल्ड एज 4 लेवल पंपिंग। 4 लेवल पंपिंग मतलब अगर सिर्फ ग्राउंड एक्साइटेड और एक मेटास्टेबल है उसको कहा जाता है 3 लेवल सिस्टम, पर ग्राउंड एक्साइटेड और 2 या उससे ज़्यादा मेटास्टेबल है तो उसको कहा जाता है 4 लेवल सिस्टम। ठीक है, एक ही मेटास्टेबल स्टेट मतलब 3 लेवल स्कीम। एक से ज़्यादा मेटास्टेबल स्टेट, फिर चाहे 2 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 10 रहे, तो वो होती है 4 लेवल स्कीम। तो हीलियम नियॉन लेज़र 4 लेवल स्कीम में आता है क्योंकि उसमें 3-3 मेटास्टेबल स्टेट है। और 3-3 मेटास्टेबल स्टेट की वजह से क्या होगा, वेवलेंथ अलग अलग निकलेंगी। E6 से E5 में जंप करेगा तो एक 3.39 माइक्रोमीटर वाला लेज़र निकलता है। E6 से E3 में जंप करेगा तो 6328 वाला माइक्रोमीटर वाला लेज़र निकलता है। E4 से E3 में जंप करेगा तो 1.15 माइक्रोमीटर विच इज़ इंफ्रारेड लेज़र। ये और ये माइक्रोमीटर मतलब इंफ्रारेड लेज़र्स है और ये रेड कलर का लेज़र है। तो 3-3 लेज़र बाहर निकलते हैं। ठीक है, और फिर E3 से वापस E2 में आएगा तो स्पॉन्टेनियस लाइट भी निकलता है लेज़र के साथ। ठीक है, मतलब मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ निकल रही है। तो ये ज़्यादातर मोनोक्रोमेटिक लेज़र नहीं होता। ठीक है, जिसमें ज़्यादा लेवल्स होती है वो मोनोक्रोमेटिक नहीं रह जाता, उसकी बहुत सारी वेवलेंस बाहर आती है। एंड नाउ फ्रॉम E2 टू E1, अब E2 में हमको नहीं चाहिए एटम्स टू बी कलेक्टेड मोर, वी वांट E2 टू बी हाईली इवैक्यूएटेड, जल्दी से E2 से E1 में आने चाहिए एटम। तो इसके लिए रखा जाता है ट्यूब डायमीटर बहुत ही नैरो। उससे क्या होगा, इफ़ द ट्यूब डायमीटर इज़ वेरी वेरी नैरो, the atoms will start colliding with each other और they will collide with the narrow diameter, क्योंकि उनके बहुत ही पास है वो, तो वो ड्यूरिंग कोलिजन थोड़ी थोड़ी एनर्जी बाहर फेंकते जाएंगे तो जल्दी से वो डी एक्साइट हो जाएंगे। अगर एनर्जी नहीं बची तो वह वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। तो इस तरह से बची खुची एनर्जी एटम्स की ख़त्म करने के लिए ट्यूब डायमीटर नैरो रखा जाता है ताकि ये E2 से E1 में क्विक आ जाए और कोई ज़्यादा वेवलेंथ ना निकले। पहले ही यहाँ पे बहुत सारी वेवलेंथ निकल चुकी है, तो क्विक डीके कराने के लिए ट्यूब डायमीटर नैरो रखते हैं। ओके, हाउ विल यू राइट द आंसर, तो ये यहाँ पे दिया है, देखो, द लास्ट ट्रांजिशन फ्रॉम E2 टू E1 इज अ क्विक डीके विद द हेल्प ऑफ नैरो ट्यूब डायमीटर, द डी एक्साइटेशन ऑफ एटम्स फ्रॉम E2 टू E1 इज डन when the atom loses its energy by colliding with the walls or with each other, and then they will come down to E1 without any further
emission of wavelength. So this is called quick decay. So for quick decay, tube diameter should be taken very very narrow. Is it understood the working? समझ में आया सबको? तो सबसे पहले क्या होगा, when the energy is thrown, when the pumping is turned on, pumping means electrical pumping, so helium will get excited, neon will also get excited. तो ये E1 से E3 E4 E6, अच्छा ये एनर्जी लेवल ड्रॉ कैसे करनी है आपको याद रखना कैसे है, तो दोनों के ग्राउंड लेवल एक साथ ड्रॉ करो, दोनों के एक्साइटेड लेवल भी एक साथ ड्रॉ करो, इसके एक्साइटेड लेवल थोड़े इससे ऊपर दिखाओ। अब इसकी तो खत्म हो गई डायग्राम, अब इसके डायग्राम में 3 मेटास्टेबल स्टेट डालनी है, तो कैसे याद रखना है, हर एक लेवल के नीचे नीचे एक एक मेटास्टेबल डालनी है और फिर बीच में एक मेटास्टेबल डालनी है। समझ में आया सबको, याद रहेगा ना। और फिर यहाँ पे 3 लेवल के बीच में 3 लेज़र, फिर ये चौथा नॉर्मल लाइट, मतलब 4 वेवलेंथ आपको याद रखनी है, और फिर क्विक डिके। सो ये प्रोसेस समझाना मतलब वर्किंग एक्सप्लेन करना हीलियम नियॉन गैस लेज़र का। Got it everyone? So this is construction. In examination, the question may come explain the working of helium neon gas laser. तो उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन में बस थोड़ा सा बताना है कि क्या क्या रहता है। उस टाइम पे ये डायग्राम नहीं ड्रॉ की तो भी चलेगा, अगर डायरेक्टली वर्किंग पूछा है तो। और अगर पूछा है गिव द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, तो फिर कंस्ट्रक्शन की भी डायग्राम देनी है, थ्योरी भी लिखनी है, और फिर वर्किंग की भी डायग्राम देनी है और उसको एक्सप्लेन करना है पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, तो डायग्राम के ऊपर की सभी चीज़ें याद रखो तो अपने आप आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। ठीक है, डायग्राम ही अच्छे से याद कर लो, कौन सी वेवलेंथ कहाँ से निकल रही है। अच्छा, और एनर्जी को नंबरिंग नीचे से शुरू करना, E1 E2 E3 E4 E5 E6। ठीक है, so just go through this once. Shall we move ahead? Okay, अब ये जो न्यूमेरिकल है वी विल टेक इट इन द न्यूमेरिकल क्लास टुमारो। कल या परसों हम लोगों का ये रहता है ना ट्यूटोरियल, तो उसमें हम लोग लेज़र के न्यूमेरिकल लेंगे, तो उसमें ये फॉर्मूले है, तब ये फॉर्मूले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब कोहेरेंस लेंथ एंड कोहेरेंस टाइम का कंसेप्ट होता है लेज़र में, मैंने बताया था लेज़र इज़ हाईली कोहेरेंट, बताया था, याद है सबको। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन लेज़र एंड नॉर्मल लाइट इज़, नॉर्मल लाइट इज़ इनकोहेरेंट बट लेज़र इज़ कोहेरेंट। अब कोहेरेंसी कैसे बता सकते हो आप लोग, दिस इज़ लेज़र जो कि शुरू से लेके एंड तक एक जैसा रहेगा। ठीक है, और अगर ये थोड़ी देर बाद चेंज हो जाता है तो द डिस्टेंस अप टू विच इट रिमेन द सेम, दिस इज कॉल्ड कोहेरेंस लेंथ। okay, it is the length or the distance up to which the wave was coherent, it is called coherence length. It is represented by the symbol small l suffix coh, coh. Got it all of you? And if anything I am measuring in terms of distance, then I can always measure it in terms of time, because speed equal to distance upon time. So if I know something in terms of distance, I can definitely know that in terms of time. So the distance up to which the wave was coherent, it was coherence length. So the time up to which the wave was coherent, it is coherence time. So it is called T suffix co. कोहेरेंस टाइम के बहुत सारे सिंबल है, कुछ कुछ बुक्स में टी सफिक्स को यूज़ किया जाता है, कुछ कुछ बुक्स में डेल्टा टी यूज़ किया जाता है। इन सम बुक्स इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज टॉ। कोहेरेंस लेंथ का जनरली एक ही सिंबल होता है, एल सफिक्स को। ओके, सो इफ अ वेव इज गोइंग ऑन and after some time it changes, so the time up to which it was coherent is coherence time, the distance up to which it was coherence is coherence length. So coherence length can be 1 kilometer, 2 kilometer for a laser. For normal light it is in centimeters or millimeters, but for laser it is in kilometers because laser is highly coherent. And now what about coherence time? For coherence time, laser is having high time coherence, that is maybe some milliseconds or microseconds or even seconds, and ordinary light is in nanoseconds or even less than that, picoseconds. So lasers अच्छे खासे coherent होते हैं.
ओके। तो अब किसी भी लेज़र का आपको लेंथ ऑफ कोहेरेंस और टाइम ऑफ कोहेरेंस का रिलेशन, सो ये स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से आता है। स्पीड इज क्या होता है, लाइट का स्पीड c, सो c इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन है हमारा, लेंथ ऑफ कोहेरेंस, सो लेंथ ऑफ कोहेरेंस अपॉन टाइम ऑफ कोहेरेंस। So length of coherence upon time of coherence, so speed equal to distance upon time, so simply क्या किया, ये टाइम को इधर लेके आए, so L coherence equal to C into T coherence, this is one formula, इसको बॉक्स कर दो, this will be used to solve the numerical। अब टी कोहेरेंस और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन में एक रिलेशन होता है, आपको पता है टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर वन अपॉन ईच अदर। सो इफ द लेजर इज एमिटेड विथ सम फ्रीक्वेंसी डेल्टा न्यू, जिसको बैंडविड्थ कहते हैं, सो दिस इज कॉल्ड बैंडविड्थ हैविंग फ्रीक्वेंसी यूनिट हर्ट्ज। सो जैसे बोला गया कि लेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 ओ हर्ट्ज सॉरी is emitted, what is the t coherence, so 1 upon 1000 hertz, that is t coherence। सो टाइम इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो लेज़र का फ्रीक्वेंसी दिया है तो उसका टाइम ऑफ कोहेरेंस निकाल सकते हो, ये दूसरा फॉर्मूला है। और लेंथ ऑफ कोहेरेंस को इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ भी लिखा जाता है, सो वेवलेंथ इज लैम्डा स्क्वायर अपॉन डेल्टा लैम्डा, इफ लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लेजर लाइक 6000 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट, इसका यूनिट रहेगा एमस्ट्रॉन्ग यूनिट। सो 6000 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट वेवलेंथ ऑफ लेजर इज एमिटेड विथ अ स्प्रेड ऑफ, स्प्रेड मतलब मैंने बताया था ना प्लस माइनस इधर उधर की भी वेवलेंथ निकलती है, तो विथ स्प्रेड ऑफ 100 लैम्बडा, तो ये हो जाएगा 6000 स्क्वायर अपॉन 100 लैम्बडा, तो जो भी कैंसिलेशन वगैरह होगा उससे आपको एल कोहेरेंस मिलेगा। सो ये तीन फॉर्मूले हैं कोहेरेंस के ऊपर। और एक फॉर्मूला है आपका द पॉपुलेशन रेशियो ऑफ द टू स्टेट्स, ठीक है। N2 मैंने बताया था पॉपुलेशन ऑफ हायर एनर्जी स्टेट, N1 इज द पॉपुलेशन ऑफ लोअर एनर्जी स्टेट, सो N2 बाय N1 का रेशियो बोल्ट्जमैन इक्वेशन इसको कहते हैं। सो बोल्ट्जमैन इक्वेशन से मिलता है e टू द पावर माइनस E2 माइनस E1, E2 इज द एनर्जी ऑफ हायर स्टेट, E1 इज द एनर्जी ऑफ लोअर स्टेट, तो उन दोनों का डिफरेंस माइनस में लेके अपॉन के टी ई टू द पावर करके ये जो भी आएगा ये होता है पॉपुलेशन ऑफ टू स्टेट्स। नॉर्मल कंडीशन में N2 बाय N1 कैसे आता है, बहुत छोटा आता है क्योंकि N2 कम होता है N1 ज़्यादा होता है, और पॉपुलेशन इन्वर्जन सिचुएशन में ये रेशियो बड़ा आना चाहिए। समझ में आया, हैव यू अंडरस्टूड ऑल द फोर फॉर्मूली। इन्हीं चारों फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल करने हैं जो कि बहुत आसान है, लेजर के न्यूमेरिकल स्कोरिंग होते हैं। गॉट इट एवरीवन, सो न्यूमेरिकल वी विल सॉल्व इन द ट्यूटोरियल क्लास, ठीक है, दो सेपरेट क्लासेस में ट्यूटोरियल होगा इस बार, तो तब आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, ओके। सो लेट अस मूव अहेड, आप चाहो तो ये फॉर्मूला लिख दो ताकि आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओ in the tutorial class directly. These are three formulae on coherence, length and time condition, and this is the formula on population inversion. Done everyone, shall we move ahead? Yes. So now next, now I told you about the 3 level and 4 level, याद है क्या, अभी मैंने बताया था जब मैंने ये वाली डायग्राम एक्सप्लेन करी थी कि एक होती है 3 लेवल स्कीम और एक होती है 4 लेवल स्कीम। बता सकते हो 3 लेवल स्कीम किसको कहते हैं, विच स्कीम इज कॉल्ड एज 3 लेवल स्कीम? यस, मेटास्टेबल स्टेट से डिसाइड होता है कि 3 लेवल रहेंगी कि 4 लेवल रहेंगी, याद है क्या? याद नहीं आ रहा ओम, अब भी तो पढ़ाया, 2 स्लाइड पहले का पढ़ाया हुआ याद नहीं आ रहा, कैसे होगा? यस, एनीवन रिमेंबर्स व्हाट इज 3 लेवल स्कीम एंड 4 लेवल स्कीम? कितने मेटास्टेबल रहते हैं तो उस स्कीम को हम 3 लेवल कहते हैं, और कितने मेटास्टेबल रहते हैं उसको 4 लेवल कहते हैं, मैंने बताया था। हीलियम नियॉन लेजर को 4 लेवल कहते हैं क्योंकि उसमें तीन तीन मेटास्टेबल होते हैं। अब बताओ, yes anyone you can try, yes very good Mrinali,
If there is one metastable state only, then it's a 3 level pumping scheme. इनको पंपिंग स्कीम कहते हैं. पंपिंग स्कीम इसलिए कि ये यहाँ से यहाँ पंप होने वाला है और फिर यहाँ से यहाँ नीचे आने वाला है और फिर लेज़र बनाने वाला है. तो ये 3 लेवल स्कीम पंपिंग है जिसमें एक ग्राउंड, एक एक्साइटेड और एक मेटास्टेबल. ठीक है. ये 4 लेवल स्कीम पंपिंग है जिसमें एक ग्राउंड, एक एक्साइटेड और एक से ज़्यादा मेटास्टेबल, फिर चाहे 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे. ओके. Just if you want to get the analogy, it is 1 BHK flat. ठीक है. BHK बेडरूम हॉल किचन, सो 1 BHK फ्लैट. ठीक है, जिसमें एक ही बेडरूम है. और ये है 2 या 3 BHK या इवन बंगलो जिसमें बहुत सारे रूम्स हैं. ठीक है. सो बेसिक रूम, ग्राउंड, एक्साइटेड और उसके अलावा बहुत सारे मेटास्टेबल स्टेट, 2, 3, 4 कितने भी. तो एक से ज़्यादा मेटास्टेबल स्टेट मतलब 4 लेवल लेज़र, एक मेटास्टेबल स्टेट मतलब 3 लेवल लेज़र. याद रहेगा अभी. ओके. तो दीज आर कॉल्ड एज पंपिंग स्कीम. ठीक है. अब इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, विच वन इज़ बेटर. सो बेटर वन इज़ 4 लेवल. वाई? बिकॉज इन 3 लेवल स्कीम जनरली क्या हो रहा है, LPL एंड HPL. LPL मतलब लोअर पंपिंग लेवल, HPL मतलब हायर पंपिंग लेवल. सो जनरली यहाँ से यहाँ एटम पंप हो रहे हैं. सो ये हो गई पंपिंग लेवल्स. अब यहाँ से यहाँ वो तुरंत नीचे आ गया. ठीक है. अनस्टेबल है, तुरंत जंप कर दिया, मेटास्टेबल स्टेट में आ गया. और मेटास्टेबल स्टेट में पॉपुलेशन इन्वर्जन शुरू हो गया. तो यहाँ से यहाँ बन गए लेज़र. यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन, तो जहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन वहाँ पे लेज़र. ओके. इन दोनों के बीच में पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं बना क्योंकि हायर एनर्जी स्टेट में ज़्यादा एटम नहीं रुक पाते. तो वो जल्दी से जल्दी लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करते हैं. तो उनके पास वाले एनर्जी है मेटास्टेबल, तो वो वहाँ पे जंप करेंगे. ठीक है. तो इन दोनों के बीच में बन गया, प्लीज़ म्यूट योर सेल्फ, इन दोनों के बीच में बन गया पॉपुलेशन इन्वर्जन. तो यहाँ पे मिलेगा लेज़र. अब क्या हो रहा है, एक होती है लोअर लेजिंग लेवल और हायर लेजिंग लेवल. जिसके बीच में लेज़र मिलता है वो होती है लेजिंग लेवल्स. जिसके बीच में पंपिंग होता है वो होती है पंपिंग लेवल्स. अब ये लोअर पंपिंग लेवल और यही लोअर लेजिंग लेवल है, ग्राउंड लेवल. तो क्या होगा, पंपिंग से भी एटम डायरेक्टली यहाँ पे आ रहे हैं और लेज़र बना के भी डायरेक्टली यहाँ पे आ रहे हैं. तो ग्राउंड लेवल बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड हो जाती है जल्दी से 3 लेवल स्कीम में. So, yes, please keep yourself mute. Who is unmuted? Please keep yourself mute. Yes. So, what will happen if there are only 3 levels? तो जो एटम्स खेलने वाले हैं वो नीचे से ऊपर, ऊपर से इधर, इधर से इधर, इन्हीं लेवल के बीच में खेलेंगे. तो क्या होगा, जल्दी से जल्दी वो एटम घूम फिर के ग्राउंड लेवल में ही कलेक्ट हो जाएंगे. सो ग्राउंड लेवल विल गेट हाईली पॉपुलेटेड. Okay. So laser will be created but it will be for some duration. जितनी देर के लिए पॉपुलेशन इन्वर्जन था, मतलब यहाँ पे एटम्स ज़्यादा थे और यहाँ पे कम थे, उतने देर के लिए लेज़र आएगा. फिर जल्दी से एटम नीचे आ गए तो फिर ये वाली लेयर फिर से हाईली पॉपुलेटेड हो जाएंगी. कौन सी वाली, ग्राउंड वाली. तो फिर से पॉपुलेशन इन्वर्जन चला जाएगा तो फिर लेज़र रुक जाएगा. अब जब तक यहाँ से एटम ऊपर नहीं जाते फिर यहाँ से यहाँ नहीं आते तब तक पॉपुलेशन इन्वर्जन रुका रहेगा. और जैसे ही फिर से यहाँ पे एटम बढ़ गए तो फिर से पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गया बिटवीन ग्राउंड एंड मेटास्टेबल और फिर से लेज़र बाहर. तो ये लेज़र होता है पल्सेटिंग लेज़र. पल्सेटिंग मतलब पल्सेस के तौर पे बाहर निकलता है. ठीक है. जिसमें लेज़र का एक एक पल्स आता है. अगर आप लोगों ने वो पॉइंटर देखा होगा या ध्यान से, तो नोटिस किया होगा कभी कभार कि आप पॉइंटर को बटन दबा के ही रखते हो तो भी थोड़ी देर बाद वो लेज़र का लाइट अपने आप बंद हो जाता है. क्यों? क्योंकि वो 3 लेवल स्कीम में आता है. उसका पॉपुलेशन इन्वर्जन जैसे ही बिगड़ गया, लेज़र का बाहर आना बंद. सो लेज़र कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस. ओके. पल्स पल्स के तौर पे बाहर आता है. 2 मिनट की पल्स, फिर लेज़र बंद, फिर से 1 मिनट बाद फिर से शुरू होता है, फिर से 2 मिनट की पल्स, लेज़र बंद, इस तरह से. ठीक है. अब दूसरा, डिफ़िकल्ट टू मेंटेन पॉपुलेशन इन्वर्जन. यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन करके रखना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि बार बार एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके एटम यहाँ से यहाँ जाएंगे, तब जाके ऊपर से इधर आएंगे और फिर यहाँ पे जमा होंगे. ओके. सो ग्राउंड लेवल इज लोअर पंपिंग लेवल एज वेल एज लोअर लेजिंग लेवल. तो ग्राउंड लेवल दोनों फंक्शन करता है, इसलिए वो जल्दी से हाईली पॉपुलेटेड हो जाता है. तो वो ज़्यादा देर तक पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं रख सकता. अंडरस्टूड एवरीवन?
सो ये उसके ड्रॉबैक्स है, तो उसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, ज़्यादा देर तक पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं रहता है, इसलिए पल्सेटिंग लेज़र मिलता है। ये हो गया कंपैरिजन। अब 4 लेवल लेज़र में क्या होगा? 4 लेवल लेज़र में ग्राउंड लेवल लोअर पंपिंग होती है पर लोअर लेजिंग नहीं होती। लेज़र मिलाया जाता है बीच वाली 2 लेयर्स में, ठीक है। तो ग्राउंड लेवल से एटम पंप होके ऊपर आएंगे हायर पंपिंग लेवल में, HPL में। यहाँ से वो तुरंत नीचे जंप करेंगे क्योंकि ये एक्साइटेड स्टेट है, अनस्टेबल है। अब ये एक मेटास्टेबल है, ये हो जाएंगी हाईली पॉपुलेटेड। ये दूसरी मेटास्टेबल है, ये रहेंगी हमेशा कम पॉपुलेटेड क्योंकि यहाँ से यहाँ हम क्विक डीके कराते हैं, ठीक है। याद है इन सबको? ये वाली डायग्राम, द क्विक डीके डायग्राम, दिस वन, ये यहाँ से यहाँ क्विक डीके कराते हैं, तो यहाँ पे एटम को हम रुकाते नहीं है ज़्यादा। तो क्या होगा? दिस लेयर विल बी ऑलवेज एम्प्टी एंड दिस लेयर विल बी ऑलवेज पॉपुलेटेड। तो हमेशा पॉपुलेशन इन्वर्जन यहाँ पे बना रहेगा एंड हेंस व्हाट विल हैपन, द लेजर विल बी ऑब्टेन हियर कंटिन्यूअसली। तो फिर ग्राउंड लेवल चाहे फिर से पॉपुलेटेड हो जाए, हमको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि लेज़र यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये डीपॉपुलेटेड रहेंगी हमेशा और ये पॉपुलेटेड रहेंगी, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन, ये वाला ज़्यादा पॉपुलेशन, ये वाला कम पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन हमेशा रहेगा। सो लेज़र विल बी कंटिन्यूअस लेज़र, नॉट पल्सेटिंग, मतलब पल्स पल्स नहीं आएंगे, कंटिन्यूअस लेज़र बाहर आएगा, ओके। And this kind of a laser is more efficient. Continuous laser, population inversion can be easily achieved for long time and ground level is not involved in the lasing action. So ground level को हमने हटा दिया लेज़र के तौर पे और सिर्फ 2 मेटास्टेबल स्टेट में लेज़र लाया गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, लेज़र का इफ़िशियंसी बढ़ गया। तो गैस लेज़र्स, ठीक है, ND याग, ये जो सॉलिड स्टेट लेज़र है ये भी, या HENE गैस लेज़र या CO2 लेज़र, ये लोग 4 लेवल पंपिंग में आते हैं जो कि कंटिन्यूस लेज़र देते हैं, ठीक। और जो सॉलिड स्टेट लेज़र होता है आपका सिंपल रूबी लेज़र, ठीक है, वो आता है 3 लेवल पंपिंग में। ये उसकी डायग्राम है, ये देखो 3 लेवल्स हैं। समझ में आया सबको? गॉट इट एवरीवन? Have you understood the difference between 3 level and 4 level pumping? Yes, very good. तो अगर एग्जाम में आता है तो लिख पाओगे विच लेवल इज बेटर, कौन सी एनर्जी लेवल बेटर होती है काम करने के लिए, कौन सी लेवल पंपिंग बेटर होती है? 4 लेवल वाली, वेरी गुड। वाई 4 लेवल पंपिंग इज मोर इफिशिएंट? Because it is not having ground level involvement in the population inversion process, because ground level is not doing the function of lower pumping and lower lasing both. It is only lower pumping level. Lasing levels are different than the ground level and hence population inversion is continuously maintained. So it is more efficient, continuous laser is produced, okay, and energy is not required much more, okay. ओके, सो हियर वी आर एट द एंड ऑफ दिस यूनिट खत्म हो गया है, न्यूमेरिकल अगली क्लास में करेंगे। अच्छा, एक छोटा सा 5 मिनट में लेते हैं। वी हैव सीन द स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। लेट मी गो बैक टू द स्लाइड। ओके, कैन यू टेल मी द डिफरेंस पॉइंट बिटवीन द स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन? 4 डिफरेंस पॉइंट्स बताओ। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। सो कैसे डिफरेंशिएट करोगे बताओ तो? पहला पॉइंट, spontaneous emission, stimulated emission. What is first point? Spontaneous is incoherent. Okay, actually ये point है पर this cannot be first. First point आना चाहिए एकदम basic difference. Spontaneous emission नाम से difference जो होता है, spontaneous का मतलब क्या, stimulated के मतलब क्या, बताओ जल्दी जल्दी। Spontaneous emission is occurred by its own. और फिर stimulated में क्या लिखोगे? Stimulated emission, yes, stimulated emission occurred with the help of some external energy. Good. अब सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे? नाउ स्पॉन्टेनियस एमिशन अब बाय इट्स ओन हो रहा है, सो इट कैन नॉट बी कंट्रोल, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। सेकेंड पॉइंट कैन बी इट्स अ नेचुरल प्रोसेस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन इज आर्टिफिशियल प्रोसेस, मैन मेड प्रोसेस। Spontaneous emission is cannot be controlled kind of a process. Stimulated emission can be controlled, क्योंकि हम करा रहे हैं ना स्टिमुलेटेड एमिशन, हम ज़बरदस्ती वहाँ पे फोटोन मारेंगे तब वो फोटोन एनर्जी बाहर फेंकेंगे। सो स्टिमुलेटेड एमिशन कैन बी कंट्रोल्ड।
और फिर आएगा स्पॉन्टेनियस एमिशन गिव्स इनकोहेरेंट रेडिएशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन गिव्स कोहेरेंट रेडिएशन। ये चौथा पॉइंट लिख रहे हैं क्या सब लोग? आर यू नोटिंग इट डाउन? इट्स अ काइंड ऑफ होमवर्क फॉर यू, नोट डाउन दीज 4 पॉइंट्स। पहला तो हो गया नेम, नेम से जो डिफरेंस आता है बाय इट्स ओन और फोर्सफुल या विद हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल एनर्जी। दूसरा पॉइंट है नेचुरल मैन मेड। तीसरा पॉइंट है कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, कैन बी कंट्रोल्ड। चौथा पॉइंट है इनकोहेरेंट रेडिएशन, कोहेरेंट रेडिएशन। एंड लास्ट पॉइंट इज स्पॉन्टेनियस एमिशन गिव्स नेचुरल लाइट, ऑर्डिनरी लाइट जिसको कहते हैं, एंड स्टिमुलेटेड एमिशन गिव्स यूज व्हाट? क्या देते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन? लेजर। वेरी गुड। चलो एटलीस्ट समवन आर लिसनिंग, बाकी लोग तो सो रहे हैं, है ना? Now let me close the browser. So we can say that we have finished the laser chapter and by tomorrow या डे आफ्टर टुमारो हमारा कब रहता है ट्यूटोरियल? जी सेक्शन का ट्यूटोरियल शायद से फ्राइडे को रहता है ना?